आज जो हमारे गेस्ट है ना भाई, उन्होंने तो ईरान जाकर इतिहास ही रच दिया। उन्होंने ईरान जाके सीधा कर ली शादी और भाभी को ले आए इंडिया। मैंने इसको पूछा, मैंने इसको दिखाया सिंदूर और मैंने कहा, मैं ऐसे इशारा करा, मैंने कहा मैं भर दूँ मांग ऐसे। तो कह रही हाँ, अगर आप जैसे कोई लड़की शिकायत भी करेगी ना किसी लड़के की कि इसने मुझे छेड़ा, इसने मुझे बदतमीजी, तो लड़के को ऐसा नहीं पकड़ लिया कर दिया, तो पहले उसको पूछताछ होगी प्यार से। अगर उसने ये भी बोल दिया ना कि इस लड़की ने हिजाब नहीं पहना था, तो फिर लड़की की नहीं सुनी जाएगी। और दहेज का क्या सिस्टम है भाई? दहेज भाई देना पड़ता है लड़के वाले, लड़के को देना पड़ता है। जब मेरी जो हमारे बीच में जो हुआ था और जो उसके फादर ने कंडीशन रखी थी, तो 50 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट डाला गया है। जब चाहे तब ले सकती है। हमारी बात भी हो रही थी कि बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं। फिलहाल जो मुझे अभी रिसेंटली जो थ्रेट आया है, वो लड़का मेरे को कोलकाता का पता लगा है। क्या बोला? तेरी शादी हराम है, तेरा मर्डर करवा देंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है, हम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे पॉडकास्ट करते हैं। हम ट्रैवल रिलेटेड बहुत पॉडकास्ट करते हैं और बहुत सारे ट्रैवलर्स हमारे यहाँ आकर ये बताकर गए कि ईरान बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, उन्हें बहुत मज़ा आया। ईरान के लोग बहुत प्यारे होते हैं। ईरान के लोग कभी पैसे नहीं लेते, पेट्रोल में फ्री में भरवा देते हैं उनकी गाड़ियों में। पर आज जो हमारे गेस्ट है ना भाई, उन्होंने तो ईरान जाकर इतिहास ही रच दिया। उन्होंने ईरान जाके सीधा कर ली शादी और भाभी को ले आए इंडिया। तो ईरान में शादी कैसे हुई, वहाँ के क्या तौर तरीके हैं, रूल्स क्या हैं, कैसे वो सब डॉक्यूमेंटेशन हुई, इसी टॉपिक पे आज पॉडकास्ट करने के लिए हमने बुलाया दिवाकर भाई को एंड फायजा भाभी को। और आज हमें बताएंगे अपनी लव स्टोरी के बारे में, कैसे ये पॉसिबल हुआ। ये तो भाई रियल लाइफ गदर ही कर दिया आपने कि जाके भाभी को दूसरे देश से लिया है भाई बहुत मेहनत करी आपने, पर स्वागत है आपका। स्वागत है आपका एंड वेलकम फायजा, एंड इट्स लवली टू हैव यू हियर। हाउ डू यू लाइक इंडिया? Actually, I like the people of India. Most of them are very much friendly. They are warm-hearted, and actually, I like the Indian traditional clothes of India. Okay. And I like pani puri, momo, and matar paneer. What all places you have been to in India? Have you traveled India? Yeah, some all places, like Dehradun. You like Dehradun? Dehradun, yes. What do you like in there? What do you like there? The weather is so good. People are so civilized. Everything is green, and we have a lot of rain there. Civilized people are not here in Delhi and Noida. No, it is not like that. You know, actually, because I don't see that much trashes in Dehradun, because of that I am saying. But off the camera you were saying you want to go back home. Yes. Why is that? You know, actually, there is something. If I like India, it does not mean that I want to live here, because I miss my beloved ones a lot. I have so many friends that are like my sisters. My mom, my father, those people who really supported me in every step of my life, and they show love to me from deep down inside. दिवाकर भाई कह रहे हैं हमसे तो बात कर लो। So I just want to ask you one thing, that it's quite obvious that Divakar bhai fell in love with you, and because you are very beautiful and of course well cultured, well mannered. But what did you find in him? Like, what qualities did you find in him that you came all the way to India, married him? Shubham bhai, actually the thing is that the first thing which was very much important for me, actually it was the attitude of the person. Like, You liked his nature? very much. I just admire him really. Like the attitude that he has about the world, about the universe. I really like it, and it was actually my first criterion to get married. That the person to whom I want to get married, okay, that person must has a high attitude. Yes, high attitude. This was my first criteria, because if that person attitude isn't the way that I like, definitely he's wise, definitely he's mature, definitely he's full of love, definitely he's full of everything that I want. वाह भाई वाह। भाई जी, एटीट्यूड कैसे हाई करना है, जरा अब कॉपी पेन निकालो जरा। कहाँ से भाई, कैसे बनेगा ये ऐसा नेचर? सलमान भाई जैसा एटीट्यूड। भाई चलो दिवाकर भाई, आप ये बताइए, आप पहले आपसे जानना चाहता हूँ, मतलब कैसे आपने बात करी, कैसे इनिशिएट किया भाभी से, आप मिले कैसे?
भाई सबसे पहले तो सभी को ओम नमो नारायण। और मिले भाई, मिलना तो देखो कुदरत का है, जिसको जहाँ मिलना होता है मिल लेता है। मेरी जो फाइजा से बात हुई थी वो इंस्टाग्राम पे हुई थी। पहले आपने किया था फिर हुआ कैसे था? ऑब्वियसली कौन करेगा? फर्स्ट मूव तो बॉयज ही करते हैं। डेस्परेट इंडियन। तो भाई मैंने उसको मैसेज किया था पहले। वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब कैसे ढूंढना कैसे? ऐसा था मेरे उसमें पहले भी ईरानियन साइड थे। मुझे ईरान को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, क्योंकि भाई सभी को पता है कि यार एक ऐसी कंट्री है भाई, छुपी हुई सी जहाँ कंट्री है। सुंदर लड़कियां रहती है। ये तो है। ये आपने सुना हुआ था पहले कि वहाँ सुंदर लड़कियां हैं? नहीं, हाँ, ये मेरे भाई ने मुझे 10 साल पहले बताया था। अच्छा। सबसे सुंदर लड़की भाई ईरान की होती है, और वो मेरे दिमाग में था। मैंने कहा अगर मैं व्लॉग करने कहीं जाऊंगा, ट्रैवल व्लॉग्स करने, तो मैं पहले ईरान ही जाऊंगा भाई। तो मैं इसी संदर्भ में लोगों से बात करता रहता था। तो इसकी प्रोफाइल पे इसकी फोटो नहीं थी, और मैंने इसको मैसेज करा। मैंने कहा तुम ईरानियन हो या टर्किश हो? तो उसने कहा मैं ईरानियन हूँ। तो आपने बिना फोटो देखे तुक्का सा मारा कि भाई क्या पता लड़की अच्छी निकल जाए। वो ये चीज़ हुई थी। तो मैंने फिर इसको मैसेज किया, इसने कहा मैं ईरानियन हूँ। मैंने कहा, फिर बात करनी शुरू हुई, और फिर इसको इंटरेस्ट था कि ये इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा है। वैसे इतनी अच्छी है नहीं, इसको लगा। लिखने पे तो शेर है। हाँ, लिखने में तो शेर है भाई। तो भाई वो चीज़ हुई, और फिर बात बढ़ती रही, ऐसे बढ़ती रही। फिर थोड़ा ये इमोशनल चीज़ें हुई। उस टाइम क्या हुआ था ना, 2021 की बात बता रहा हूँ मैं। तो मैं भी उस टाइम एक डिप्रेशन मोड में था, मेरे फादर डिमाइस हुए थे। तो मुझे भी एक कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, और जब मेरी उसकी बात हुई ना, तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ईरान चला जाऊँगा, वो भी शादी करने। शादी करने खास तौर से नहीं। तो जब चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, और मैंने इसको कहा किसी को बताना मत। इसको पहले बोल दिया था मैंने, किसी को बताना मत। मैंने भी किसी को नहीं बताया था। इसको पता नहीं क्या सूझा, इसने अपने फैमिली को बता दी ये बात कि एक लड़का आ रहा है मिलने। इंडिया का एक लड़का है, और मैं उससे प्यार करती हूँ। और इसके फादर तो आ गए रौद्र रूप में बिल्कुल ही। और फिर मतलब वो होता ही है भाई, थोड़ी बहुत पिटाई विटाई होती है। तो वो सब हुआ। तो इसके फादर और इसके पेरेंट्स 1000% श्योर थे कि ये लड़का नहीं आएगा, ये तुझे मैनिपुलेट कर रहा है। हाँ, क्योंकि इंडियंस को लेके बहुत सारे मिथ हैं कि भाई इंडियंस ऐसे हैं, जैसे कि कॉमन मिथ जो है, मिथ भी है और सच्चाई भी है, कि इंडिया बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है और अनहाइजीनिक कंट्री है। ठीक है, काफ़ी हद तक सच्चाई है। ये तो अभी पिछले 10 साल में जो भी चीज़ें हुई हैं वो अच्छी हुई हैं, लेकिन ये सच्चाई भी है। तो वो इंडिया को लेके एक ये था। दूसरे उसके पेरेंट्स, इसके फादर के ना एक फ्रेंड है, वो वहाँ रहते हैं पुणे में। हाँ, तो वो है ईरानियन ही। हाँ, ईरानियंस हैं। अच्छा। सबसे ज़्यादा आपको ईरानियंस पुणे में तो मिलेंगे। उन्होंने क्या बोल दिया वहाँ? उन्होंने बोल दिया, बोले तुम्हारी लड़की को बना रहा है, ये चक्कर में मत पड़ो। हाँ। वैसे ही यूपी साइड के तो वैसे ही बदनाम है, दिल्ली यूपी के बोले पता ही है। तो भाई इसको मना कर दिया इसके फादर ने बिल्कुल ही, कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये भी अपने पक्के पे है। मैं अभी तक बिल्कुल सोच के नहीं गया था कि मेरे को जाना है। मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था। ये इसके चल रहा था उधर ईरान में, ये मुझे बस आपको बताया नहीं? मुझे नहीं पता था। तो ये बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई हुई। फिर इसके फादर जो है, एक सेकंड इनसे पूछ ही लेते, सॉरी कट कर रहा हूँ। व्हाई डिड यू टेल योर पेरेंट्स अबाउट हिम बिफोर ही इवन प्लान टू विजिट? Please have this word from me that whenever a boy, a girl, it does not matter, when like as soon as she or he feels this thing that the relationship is very much serious, she or he really wants to say to the family members, like she or he wants to take this issue up with them. I just saw it very much serious, and I really from inside I didn't feel good that they don't know about this thing, even though I know that they're religious, and our culture was not like this, that I be in relationship with a person. My father, my mother, they didn't accept this thing. So before that he was not even sure that he'll come to you, he'll visit Iran. Still you were so confident that I need to tell my parents? I first I just let him to show him to myself, you know,
like by asking some things from attitude actually, by asking some things and by seeing some things from him, and even by seeing his actions, like Okay. just the way that he get angry, the way that he talk to me when he get angry, like all these things I was very much careful about So them. you were kind of testing him, like how Of he course, reacts of course, to of course, everything. because for me, a person who offend and using the offensive words when he gets angry, like I don't like such person. And so many times, so many challenges and fights happen between us, but he never said. He never disrespects you or anything. So you were sure that I should tell my parents now. Yes, yes. फिर क्या हुआ भाई? तो भाई ये जैसे जैसे पेरेंट्स की गाली खा रही है, पिट रही है, लेकिन बात करना इसने नहीं रोका। पिटाई तक पहुंच गई थी। पिटाई तक हुई थी। Are parents allowed to beat their kids in Iran? Not father. Not father. Not father. No, it is Your not mother common. used to beat you? No. actually, when I was child, yes, my mother, like whenever, of course, she's a mother, but not with the chopper, not with the chopper, like this. Oh. Pinching was the name. This is beating there. This is called beating. You know how Indian parents beat in India? No, not even chappal, with belt. With belt and with the long stick. In Iran, we call this kind of parents poisonous parents. ओह, सारे पॉइजनस हैं हमारे तो। Like the children never forget this thing. चलो भाई आगे बढ़ते हैं कहानी में। इस पे टिप्पणी नहीं करेंगे भाई। सबके बचपन एक जैसा ही बीते हैं। हाँ, हमें तो फॉरगेट करनी पड़ती है, जमीन भी तो नाम करानी है। हाँ। और क्या? तो भाई क्या हुआ, वो हो रहा था उसके साथ जो भी हो रहा था। फिर इधर मैं अपनी जॉब पे था, उस टाइम मैं एक न्यूज़ एजेंसी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। अब उस जॉब के साथ तो मैं कभी ईरान जा ही नहीं सकता था भाई, उसमें इतनी सैलरी नहीं, इतनी ग्रोथ नहीं, दूसरा छुट्टी भी नहीं मिलती। तो मैंने इसको बताया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, ठीक है, अगर तू चाहती है कि मैं ईरान आऊँ तो मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ और करूँगा। और मैंने इसको बताया भी नहीं कि मैं जो है यूट्यूब पे वीडियोस करने वाला हूँ, मैंने बताया ही नहीं इसको कुछ भी। मैंने अपना वही वीडियोस वगैरह करना शुरू करा, और गुरुदेव के आशीर्वाद से सब ठीक रहा। फिर एक टाइम आया कि हाँ, अब मुझे लगा कि जाना चाहिए, ठीक है। उस टाइम मेरे को लगा, मैंने सारी अपनी जमा पूंजी इकट्ठी कर ली थी, और फिर मैंने इसको बताया बिना इसके कहे, इसको चुपचाप मैंने, उस टाइम मैंने पासपोर्ट भी नहीं बनवाया था, मैंने इसको पहली बार पासपोर्ट दिखाया है कि मैंने पासपोर्ट बना लिया, और इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, ये मतलब बहुत ज़्यादा श्योर। लेकिन हाँ, मैंने इसको एक कमिटमेंट दे रखी थी कि मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, मैं कभी तेरा दिल आपको नहीं वैसे कभी ऐसा डर नहीं लगा कि मतलब कि ठीक है हमने उनसे तो पूछ लिया, आपको कि कोई और ही बात कर रहा हो या फंसाना चाह रहा हो कोई लड़की, मतलब कोई सेटअप हो, कभी ऐसा नहीं लगा? वो चीज़ जो है ना, वो एक्शंस में नज़र आती है। इसने मुझसे बहुत बार कहा कि तुम मेरा इंस्टाग्राम का पासवर्ड ले लो। मैंने कहा मैं तुझे कभी सर्वेलेंस करूँगा नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे पता लग गया तो वो मैं बिना बताए फिर चला ही जाऊँगा, ठीक है। मेरी सीधी सी बात है, मैं तुझे कभी सर्वेलेंस नहीं करूँगा, तू फ्री है, लेकिन ये तेरे ऊपर बात है। लॉयल्टी कोई थोपी नहीं जाती है, ठीक है। वो अगर मैं सर्वेलेंस कर रहा हूँ तो मैं थोप रहा हूँ लॉयल्टी, ठीक है। तो अगर मैंने कभी देख लिया इस तरीके की चीज़, तो फिर मैं चुपचाप बिना बताए तुझे चला जाऊँगा, तुझसे कुछ कहूँगा भी नहीं। तो ये इस चीज़ को बड़ा वो लेके चलती थी, और ये अगर किसी लड़के का मैसेज भी आता था ना, ये मेरे को बता देती थी। हाँ, ऐसा होना चाहिए भाई, बढ़िया चीज़ है ये तो, ये होती है लॉयल्टी। In India there is like not much loyalty left in girls. No, really. Even actually, he said to me, because that time I remember that I asked him that why from India you don't want the girl, like why not Indian girls? So he said the same thing. Yeah, exactly. यही है ना मैंने भाई? यही कहा था। मैंने कहा भाई एक तो उनमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है, इंडियन नहीं, सब में नहीं है, मैं सभी को ऑफेंड नहीं कर गर्ल्स, इन फैक्ट द बॉयज आर नॉट लॉयल थीस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो दोनों का ही केस है भाई, जरूरी थोड़ी है कि गर्ल्स ये लौंडे भी हरामी हो रहे हैं। High attitude. I like it. He said that both boys and girls. पर भाई हो आप। वो तो सभी है यहाँ इस कमरे में, तो भी भाई है। मैं भी भाई हूँ। फिर तो वो चीज़ तो कभी भाई आए नहीं ना। इसने मुझसे कभी नहीं मांगा कि भाई तुम्हारा पासवर्ड चाहिए, ये बोला ना डिमा का। मैंने कभी वो चीज़ हमारे बीच में लॉयल्टी वाली कभी नहीं आई, और मैं बहुत श्योर था। मैं 5 दिन तक, मुझे गुस्सा आता था तो मैं 5-5 दिन तक इससे बात नहीं करता था, ठीक है। अब 5 दिन में लड़की किसी से भी बात कर सकती है जब लड़का बिल्कुल ही भावना दे रहा हो। मेरा सिंपल फंडा था भाई, मैं कभी भी जो है, आप इसे गलत वे में भी ले सकते हो, सही वे में भी ले सकते हो, मैं किसी को अपने सर पे नहीं चढ़ाता हूँ,
ठीक है, आप बदतमीजी करोगे, आप मुझसे बिना वजह लड़ोगे ना, तो मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगा और मैं आपसे लड़ूंगा भी नहीं, सीधी सी बात है। हाँ, तो मैं जब मेरे को कुछ बात लग जाती थी इससे, तो बिना बताए मैं इसको ना मैसेज का रिप्लाई ना कुछ, मैंने कहा कर दूंगा जब मेरा मन करेगा। पासपोर्ट बन गया आपका। पासपोर्ट बन गया मेरा। उसके बाद मैंने इसको बताया कि मैं 15 जुलाई को आ रहा हूँ, लेकिन 15 जुलाई को मैं पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप था, मेरा वीज़ा वगैरह सब हो गया था, लेकिन उस टाइम मेरा इंश्योरेंस नहीं हुआ था। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है ईरान का, तो ट्रैवल इंश्योरेंस के चक्कर में मुझे वो फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। हाँ, और मतलब जो हुआ यार अच्छा ही होता है। और आपने भाभी को डेट बोला होता इस डेट को मैं आ रहा हाँ, हूँ। इसने वहाँ पे तेहरान में स्वीट बुक कर रखा था, और वो स्वीट इसने बुक करा था, इसने अपना गोल्ड बेचा था। अच्छा। हाँ, बचपन का गोल्ड जो इसके पेरेंट्स ने दिया था, वो अभी तक इसके पेरेंट्स को पता नहीं है। अब पता लग जाएगा, लेकिन अगर समझेंगे तो। समझेंगे, कोई बता देगा रिलेटिव, तो वो अलग बात है। तो इसने वो गोल्ड बेचा, स्वीट बुक करा, क्योंकि 3-4 दिन हमें वहीं रुकना था, और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लिए थे बहुत सारे इसने। और जब मैंने इसको बताया, मैं एम्बेसी के बाहर ही बैठा हुआ था, ईरानियन एम्बेसी के बाहर नीचे बैठा हुआ था, तो मैंने वहीं पे कैंसिल करा अपना टिकट। मैंने कहा यार कोई फ़ायदा नहीं है, और मैंने 1 वे करा था। वो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो आपको दोनों तरफ का करना होगा, ये आपको पता है, लेकिन मैंने करा था 1 वे, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। और मैंने इसको फ़ोन करके बताया, अब तो भाई कलेश शुरू, रोना शुरू। मैंने इसको समझाया, मैंने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छाई थी। तो वो अच्छाई ये थी कि भाई उस टाइम गुरु पूर्णिमा थी वहाँ पे, तो अगर मैं चला जाता तो मैं गुरु पूर्णिमा को जो है मिस कर देता, और मेरे गुरुदेव बहुत नाराज़ होते उस बात से। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैंने 2 जुलाई को, गुरु पूर्णिमा थी 2023 में, गुरु पूर्णिमा करी। गुरु पूर्णिमा करने के तुरंत बाद फिर मैंने टिकट कराई 26 तारीख की, 26 जुलाई की, ठीक है, 26 जुलाई की टिकट कराई, और फिर मैंने इसको बताया, और फिर मैं ईरान पहुंचा। ओह, अच्छा भाई, ऐसे फैजा, दिवाकर was telling us off camera, like before this podcast, that when you guys met for the very first time in person, you kind of got shocked because you thought he kind of looked like Vicky Kaushal, and then Yes. is it so? Yes. Actually, like the time that first I met him, and I was with my friend because my Fatima from Tehran, she was with me, and she was actually the camera girl at that time to take some photos and recorded it. And I had the bouquet in my hand, so I was just approaching the worker, and then why this much beard? Why this much beard? And his hair was like very much messy. I was like, what is happening? He's not that kind of person that I took. So, विक्की कौशल ने बिल्कुल घोषला। भाई वैसे लेकिन वीडियो कॉल पे तो सब दिखता ही होगा ना। हाँ, तो भाई मैं पहली बार मिला, तो वो तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर ही रहा था, लेकिन वो मुझे वीडियो उस टाइम पब्लिश नहीं करनी थी, मैं समय आने पे करनी थी। मैं तेहरान एयरपोर्ट पे उतरा, मैं वॉशरूम गया, मैंने चेंज वेंज करा अपना, और मैंने ईरान के अंदर जो है कुर्ता पजामा पहना, जो अपने यहाँ इंडियंस में होता है ना, जो शादी वाला होता है, ठीक है, और डाला अपना भगवा गमछा, और ठीक, फिर मैं हाँ प्योर देसी। और मैं पहुंचा तो वहाँ पर जैसे मैं सामान डाल रहा था उसके अंदर, जो चेक करते हैं ना जब बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से, तो बहुत सारा लगेज था, तो मुझसे बोला बंदा इंडियन, मैंने कहा इंडियन, ज़रूरत नहीं, जाओ। हाँ, तो मैंने कहा अरे वाह, तो मैं गया वहाँ से खुशी, और फिर जैसे ही एग्जिट करते हैं वहाँ पुलिस वाला बैठा था। अब मुझे नहीं पता इसने क्या कही थी, अब पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, इंडियन, मैंने कहा यस, कम हियर सिट। मेरी बज गई बैंड, मैंने कहा भाई इसने क्यों रोका? देयर इज़ अ गर्ल, उसने मतलब ऐसे करके टूटी फूटी अंग्रेजी में, देयर इज़ अ गर्ल, शी इज़ योर फियांसे। अब मुझे लगा यार इसको कैसे पता। मैंने कहा ऐसा तो नहीं कहीं फंस गए तुम? मैंने जल्दी से अपनी माला वाला निकाल के बैग में रखी, गमछा रख दिया साइड में, ठीक है, और मैंने बस ऐसे चुपचाप बैठा रहा, और कह रहा यहाँ बैठे रहो, और मैं बस अपना नाम जपता रहा, मैंने कहा गलत ना हो जाए। तो कह रहा आई एम कॉलिंग हर। तो ऐसा था, ये मुझे ढूंढ रही थी बहुत देर से, ठीक है, और इसने बहुत देर से ढूंढने के चक्कर में इस पॉइंट पे भी, उस पॉइंट पे भी, उस पॉइंट पे हर जगह बता दिया कि एक इंडियन आ रहा है, तो मुझे बता देना। that day, whole airport understood that an Indian guy come to Iran just because of me and my crimes. I couldn't find him, and he wasn't actually. It was my fault because I didn't check some things, and I was in the wrong salon. Yeah, because of that,
it happened. तो भाई कैसा लगा जब पहली बार देखा आपने भाभी को? भाई जब मैंने पहली बार देखा ना उसे, सामने से आ रही थी, एलिवेटर से ऐसे नीचे आई, आती रही तो सामने थोड़ा सा धुंधला था, दूरी पे थी, जैसे जैसे पास आती रही वैसे वैसे सफ़ेदी बढ़ती रही, फिल्मी सीन सा बन फिल्मी रहा। सीन सा बन रहा था। हाथ में वो ले रखा था इसने, बलून ले रखे थे 2 और बहुत बड़ा सा जो है बुके ले रखा था। तो जैसे वीडियो कॉल पे जितनी वाइट लगती थी ना, उससे ज़्यादा वाइट लग रही थी। और ये चीज़ मैं इसको आज तक बोलता आया हूँ कि तू उस टाइम बहुत ज़्यादा वाइट लग रही थी। और ये आई और फिर मैं तो खुद को, भाई मैं जैसे था वहाँ पे दाढ़ी वाड़ी बड़े करके, तो मैंने ये नहीं सोचा मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं सिर्फ इसे, मैं इसमें खो गया था। कितनी लंबी दाढ़ी यहाँ तक? यहाँ तक थी भाई, और बुरी अच्छी नहीं बुरी तो आइए, और इसने मेरे को देखा और मैंने सबसे पहले जो काम करा, मैंने रुद्राक्ष की माला ली थी। वो रुद्राक्ष की माला मैंने इसको पहना दी वहीं पे। हाँ। और फिर मेरी माँ ने जो अंगूठी दी थी, जो अंगूठी वैसे मेरे पिताजी बना के गए थे, वो बहू के लिए थी उनके, तो वही अंगूठी मैंने इसको दे दी और इसके जो बुके थे उसमें रख दिया। ठीक है, उसके बाद इसने थैंक यू बोला और फिर हम लोग एक कैफ़े में चले गए। एयरपोर्ट पे एक कैफ़े था पास में, मैंने कहा वहाँ चलते हैं। वहाँ बैठे, उसकी फ्रेंड थी वो जो है वो वीडियोग्राफी कर रही थी, तो वहाँ बैठे और मैंने कहा देख मैं तेरे लिए जो लाया हूँ मैं तुझे यहाँ पे अभी देने वाला हूँ। मैंने इसको बिठाया, ऐसी बैठी थी, मैं यहाँ बैठा था, मैंने एक चुन्नी ली थी रेड कलर की चुन्नी, वो इसको उड़ाई और ये अपने उसमें थी पूरे बुरखा में। ठीक है, रेड कलर की इसने चुन्नी ओढ़ी। इसकी पहली बार चुन्नी देखी क्योंकि इनके यहाँ नहीं होती है सारी चीज़, और ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इसने चुन्नी देखी, फिर दूसरी चीज़ मैंने इसको जो है इसको फिर से वो अंगूठी जो थी वो बुके से लेके मैंने इसको अंगूठी पहनाई उसकी इस उंगली में, वहाँ पे चीज़ पक्की हो गई। और फिर मैंने इसको गुरुदेव का नाम लेके इसके सिंदूर मांग भर दी। वही कर दिया मैं मैटर ही खत्म। That time when he was doing that thing, so you didn't feel like let's not do it here, let's go some other place. नहीं, एक चीज़ मैं बताता हूँ इसमें, मैं घबरा रहा था उस टाइम मांग भरते हुए, क्योंकि ऐसा भाई कर मैं रहे होंगे, आपके हाथ वाथ कहाँ पर भाई होंगे? ईरान तेहरान एयरपोर्ट पे मैं और अभी मम्मी पापा से भी नहीं मिले हो? किसी से नहीं मिला हूँ और लोग हमको देख रहे हैं, और मुझे तो वैसे ही देख रहे थे, मैं उसमें था इंडियन आउटफिट में। It was not that much serious. It was just a show, and so I had some kind of Bollywood even vibe. मैंने इसको पूछा, मैंने इसको दिखाया सिंदूर और मैंने कहा, मैं ऐसे इशारा करा, मैंने कहा मैं भर दूँ मांग ऐसे, तो कह रही हाँ परमिशन ली। अच्छा। इसने कहा हाँ, तो मैंने बड़ी देख के मैंने कहा ले भाई श्रेष्ठ। भाई अब स्टोरी में ना आगे बढ़ते हैं हाँ। थोड़ा। अब आप इनके घर जा चुके हो, ठीक है। आप इनकी फैमिली से मिल रहे हो, तो वो क्या रिएक्शन था और उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया था? भाई जैसे दाढ़ी बड़ी हुई थी, ये मेरे को पहले बोल रही थी कि हमारा कल्चर ऐसा है कि भाई हमारे यहाँ दाढ़ी नहीं होती है, बहुत डिसेंट होता है, तुम स्वीटर की तरह आ रहे हो तो डिसेंट बन के आओ, मान जाओ मेरी बात, मान जाओ। मैंने कहा तू मान गई है तो वो भी मान जाएंगे ऐसी दाढ़ी में। सही बात है। ठीक है, और भाई हम अपनी दाढ़ी लेके थोड़ा सा उसको सेट कर लिया था ऐसी, जेल वेल पानी वानी मान लिया। हाँ। लेकिन लग बुरी रही थी वो। तो मैं पहुंच गया, इसके फादर आए मेरे को लेने पार्किंग में, वो देख के मेरे को, मतलब ऐसे चेहरे पे शौक नहीं था लेकिन मैं समझ गया था शौक हो चुका अंदर से है, आंखें थोड़ी बड़ी हो गई कि ये क्या है, ये क्या है। अब फिर मैं अंदर ये गया, क्या है? ठीक है। तो हे राम जगन्नाथ प्रेमानंद। वो तो हो ही गए थे, तो उनको अंदर अंदर वो खुशी भी हो रही होगी कि अब इजी है इसको मना करना। हाँ। तो अब मैं गया, अब अच्छा इनके यहाँ इरानियंस के यहाँ कारपेट डली होती है घर में, हमारे क्या हम तो जूते पहने घर के अंदर, चाहे ड्राइंग रूम हो चाहे बेडरूम हो, तो हम कारपेट पे ऐसे चले गए। सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने वहाँ कर दी। You didn't tell the etiquettes that you guys follow there. That he needs to remove his shoes before. But I didn't say to him, because I thought that maybe he knows, but probably I don't know, but actually it was I probably didn't say, and my mother said to you that your shoes, please. Baba said, oh, it was because it is very much bad for us. तो ये दूसरा ब्लेंडर था। अच्छा, फिर इनके फादर ने टोका आपको कि हाँ मेरे को, हाँ जैसे, और फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया यार मैंने गलती कर दी, और फिर मैंने कहा सॉरी, और मैं बाहर जाके जूते उतार दिए, मैं अंदर आ गया। फिर उन्होंने अपना खाना वाना रखा, फिर इसकी सिस्टर्स आई, वो पहले से मेरे को वीडियो कॉल पे वो देखती थी, दोनों ट्विन्स है, तो वो आई अंदर से, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने इसको ये बात बोली कि जैसा सैम बोलते हैं मेरे को, बोले जैसा सैम वीडियो कॉल पे दिखता है बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अच्छा भाई आप कैसे दिखते थे फिर? आप मतलब क्या फिल्टर लगाते थे, क्या करते? उन्होंने अच्छा बोला कि अच्छे हैं? नहीं।
वैसे नहीं दिखते मतलब बुरे होते जब हैं। भाभी जी ने कह दिया बुरे दिखते हो दाढ़ी में, अंकल ने बोल दिया तो बहनें क्यों अच्छा बोलेंगी? भाई लुक चेंज हो गई ना, दाढ़ी थी भाई, थोड़ा शैबी तो लगता ही है। मैंने इसको ये बात बोली भी थी इसको पहले, मैंने कहा देख शौक मत होना, ऐसा होगा। तो वहाँ पे अच्छा से खाया उन्होंने, ड्राई फ्रूट्स रखे, ईरानियन चाय रखी, बिस्किट रखे। अच्छा एक कल्चर वहाँ पे ये है, जैसे हमारे यहाँ फ्रूट काट के देते हैं चाट बना के, इनके यहाँ नहीं है। इनके यहाँ साबुत जो है फल रख देंगे, चाकू रख देंगे, ले खा, सेब खा अपने आप काट खुद ही काटो खुद ही खाओ। अच्छा तो मैं इंतजार कर रहा था कोई काटे। तो लेकिन जब मैंने देखा कि इसके फादर काट रहे हैं तो मैंने कहा, वो बेफार्मा बोलते हैं, बेफार्मा, हम कहते हैं खाओ खाओ, वो कहते हैं बेफार्मा। बेफार्मा। फरमाइए, ऐसे फरमाइए। फरमाइए। हाँ ठीक है, बेफार्म। मैंने काटो। हाँ ऐसी बेफार्म। In a very Germanish way, you just pronounce Bifarma. No, Bifarma. बेफार्मा ऐसे। ठीक है। बेफार्मा। बेफार्मा। Oh my god. तो भाई मैंने जब वो देखा कि वो भी भाई छील रहे हैं अपने फल, तो हमें भी छीलने पड़ेंगे, हमने काट के खा लिए। चाय वाय पी, ईरानियन चाय मेरे को बहुत अच्छी लगी। भाई हमें तो काट के खाना ही नहीं आता, तुझे आता है सेब वेब काटना? मैं तो काट ले, सेब तो काट लेता हूँ। तेरे से कटवाएंगे फिर सेब। When my father was in India with me, so whenever whenever they wanted to give us some fruit and this thing, the fruits were cut, and my father was like, "Why they cut the fruits?" Why? And outside there were some people who like sell the cucumbers without the peels, and my father was saying that, why do people buy from them? It seems so unhygienic. Why do they do it? तो वो जो एप्पल खुद पील करते हैं तो वो स्किन उतार के खाते हैं सेब नहीं, की, नहीं, या वैसे ही, अच्छा वैसे ही खाते हैं? अच्छा वहाँ पे जो है ना, जो केला है, जैसे हमारे यहाँ फलों का राजा को क्या है, आम। आम है, सेब है, इस तरीके, मतलब ये बहुत ज्यादा महंगे हैं। बोले सेब रख दिया भाई साहब मेहमान के आगे, बहुत बड़ी बात। इनके यहाँ केला रख दिया। अच्छा, केला बहुत महंगा है। केले की बहुत इज्जत है। केले की डिमांड ज्यादा है। जो यहाँ 70 रुपए किलो हो रहा है वो यहाँ ना केले पेले की डिमांड। ऐसे ही है केला। केला लेके गरीबों में बांट दिया, कोई सेब नहीं बांटता दिखे। आम की ज्यादा डिमांड है यहाँ। ठीक है, तो अच्छा वहाँ केला आया आपके लिए फर्स्ट डे? केला दिया उन्होंने मुझे। हमने केला खाया, फिर खाना आया, वेजिटेरियन खाना था, बड़ा स्वादिष्ट खाना बना था। इन डिनर व्हाट वाज द फूड, आई डिडंट रिमेंबर, क्योंकि मैं उस टाइम नर्वस था बहुत ज्यादा। तो जो आज वेजिटेरियन था ना आपके लिए, तो आलू ही होगा। हाँ चावल, ईरानियन राइस बहुत अच्छे होते हैं, हमारे राइस से बड़े होते हैं। फिर बस ये सब होके और हमने फिर अपना जो है, कोई बात नहीं हुई कि तुम मेरी बेटी से मिलने आए हो? उस टाइम कोई बात उस टाइम कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि आई लाइक योर करेज दैट यू कम हियर। ओके, और मांग के टीके की बात भी अरे वो तो उसके फादर को तो आज तक पता नहीं है कि एयरपोर्ट में मुझे रिसीव करना ही है। अच्छा, मदर को पता है। अच्छा, तो अब पता लग जाएगी। वहाँ पर भी ये होता है कि बर्फ से छुपाया जाता है, माँ को पता होता है। हाँ ये होता है। वो हाउ डिड दे रिएक्ट आफ्टर मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम? How did I do it? Actually, my mother, even when Sam was there, so my mother was looking at him like this. And I was thinking, Mama, wait. Like, I call my mother Mama, like, why you're like this? So after, in front of him, they were just saying, they were asking, they were talking, but The moment he left. from the face, even it was clear. But after the time that he left, they started. Oh my God. Did they pinch you at that time? My father was saying to me that, Mona, are you sure about this marriage? I said, but he does not know this thing, that when he is coming as a suitor, at least he has to just keep his appearance good or make it good. Why with this kind of They were saying about his beard. beard, because for your it is very much important. Like the appearance is very much important, and that time he was very much like both of them. And my mother was saying that, yeah, when I was looking at him, I just thought that I had this imagination that a Taliban is in front of me. I didn't have. No, my God. भाई आतंकवादी घोषित कर दिया आपने। भाई वो Then afterwards. Then they started about the thing that, are you sure about it? Again, those kind of repetitive things that, yeah, if you get married, you're gonna be distant from us. If you like those kind of formal things that even I heard so many times from them. Again, they started. So they refused. फिर क्या हुआ भाई?
फिर क्या हुआ, वो रात वो अपन वाली 2 बजे तक पिया। क्या हुआ भाई? वो रात अपन Actually, no, it was not about a refusion, you know. They were trying to convince me not to accept. Like this. They were saying to me that, look, you think properly, whatever you say, we accept. Okay. But you were taking the stand that you want to marry him and be with him. Even my father was saying to me that, like even at the time that we got married, of course my father liked him, but he was very much like he is very much dependent on me more than my twin sisters, and he said to me that Mona, it is very much hard for me that you are getting this stand, but just because of you, I accepted this marriage. वाह। Yeah. फिर क्या हुआ फिर आपके? तो बहुत डिप्रेस था मैं, और फिर जब मैंने इसका रोना सुना, मैंने कहा बहुत हो गया, अब चल रहे हैं वापस, अपने से इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर मैं अगले दिन हॉस्टल में उठा, सुबह उठा और मैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे, सब फ्री था वहाँ पे, ब्रेकफास्ट वगैरह सस्ता है हॉस्टल। तो मेरे पास आया जो हॉस्टल का मालिक था, वो दुबई रहता है लेकिन वो छुट्टियों में आया हुआ था वहाँ पे। उसकी भी इत्तेफाक से लव मैरिज थी, वो भी इरानियन लड़की है, दोनों इरानियन थे। तो वो मुझसे बोला कि भाई क्या हो गया सैम, मतलब इतना दुखी क्यों हो तुम? मैंने कहा सर मैं वापस जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे रात बात हुई है। तो वो मुझसे बोले सुनो, मेरी भी लव मैरिज है, इरानियन पेरेंट्स होते ही ऐसे हैं, अगर तुम हार मान गए तो तुम सब कुछ गवा दोगे और रिग्रेट करोगे। तुम मेरी बात मानो, तुम डटे रहो और जैसा वो कह रहे हैं हाँ में हाँ मिलाते रहो। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर मैंने मतलब खुद में अपने आप को मोटिवेट करा, मैंने कहा चलो देखते हैं। इतनी देर में इसका फ़ोन आ गया कि हम फिर से आज आपको लेने आएंगे, और दूसरा से मिलने के लिए कह रहे हैं। हाँ मिलने के लिए कह रहे हैं, राउंड 2 इंटरव्यू 2। राउंड 2 मतलब 3 राउंड होते हैं। मतलब ये रूल है वहाँ पे ईरान में कि तुम लड़की के पेरेंट्स से सिर्फ 3 ही बार मिल सकते हो। हाँ इंटरव्यूज बोलते हैं उसको लोग। हाँ इंटरव्यू मतलब हर लड़के को 3 चांस दिए जाएंगे, चाहे आप कितने भी लड़कों से मिलो, 3 देने ही देने हैं, ऐसा? हाँ देने ही देने। और लड़की के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि वो 3 बार मिल सकती है या 4 बार मिल सकती है? नहीं उसको नहीं। मैं बता रहा हूँ वहाँ पे क्या कल्चर है ना, कि लड़का ही जाएगा लड़की को देखने, लड़की वाला कभी नहीं जाएगा। अच्छा, यहाँ तो उल्टा होता है, पहले लड़की वाले लड़के के घर आते हैं, फिर वो बुलाते हैं, फिर लड़का जाता है। यहाँ वहाँ लड़की को देखने लड़का ही जाएगा। लड़का ही आएगा। और दहेज का क्या सिस्टम है भाई? दहेज भाई देना पड़ता है वहाँ पे लड़के वाले को, लड़के को देना पड़ता है, उल्टा देना पड़ेगा। अच्छा क्या कहते हैं? जैसे यहाँ भी जो है मुस्लिम्स करते हैं, यहाँ पे भी जिसको महर बोलते हैं, वहाँ भी है, वहाँ शायद इट्स कॉल्ड महरिया। और वहाँ पे देना पड़ता है, ऐसा देना पड़ता है कि भाई लड़के के नाम पे गाड़ी होनी चाहिए, लड़के के नाम पे खुद का घर होना चाहिए, और एटलीस्ट लड़का जो है लड़की को पाल सके, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका मतलब टेक केयर कर सके, उसके खर्चे उठा सके। सर्टिफिकेट मतलब बैंक बैलेंस उधर की तरफ चलता है, वो सरकार देती है कि इसकी ये कितना कमाता है। अच्छा हमारी तरफ नहीं चलता। तो मेरे को कोई ऐसा, मैंने कहा हाँ कुछ है ही नहीं, आके देख लो, ठीक है। तो फिर इन्होंने ये सारी चीज़ें मेरे को बोली वहाँ पे। तो राउंड 2 पे चलते हैं वापस। राउंड 2 पे क्या हुआ? राउंड 2 पे रात को बोले फायजा बोली हम लोग रात में आएंगे और तुम्हें लेने, और अभी दूसरा इंटरव्यू है राउंड 2। मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे लगा एक और मौका मिल गया, मैं तुरंत गया और साफ करा दी। मैंने बलिदान दे दिया वहाँ पे, और मैंने थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप करा के मैंने कहा आज थोड़ा अच्छा दिखते हैं। मेकअप इन्हीं से करा? ना वो नहीं था। अच्छा हाँ वहाँ पहुँचा भाई, उसने अच्छा थोड़ा मेकअप वेकअप करा। फिर ये लेने जब मेरे को आए, your father get shocked after seeing? Yeah, that time that he actually did the things. Then when he come here, and my mother said, now Now he's looking like a man. Yes. इंसान लग रहा Now है। he looks good. हाँ, Like, because he changed a lot. Actually, it looks like we don't have a good. We never like this kind of this long beard at all in Iran. It is not like this. We have some years ago, but even some of our singers, they have the long beard, but in a very much beautiful way. Like yeah, it looks good. वो मुझ पे अच्छी नहीं लगी। तो भाई वो करा के हमने जो है अगले दिन पहुंच गए। उस टाइम असली जो हुए सवाल जवाब वो वहाँ पे हुए। उन्होंने मेरे को बोला कि अब मेरे को बताओ तुम क्या सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में, ठीक है, और हमारी ये डिमांड है, और हमारे यहाँ ये ऐसा होता है, तुम्हें मंजूर है? क्या डिमांड रखी? डिमांड ये कि वही जो मैंने बताया कि घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ये हाँ रख लोगे ढंग से, और ये करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा जी बिल्कुल, फिलहाल जो आपको इसलिए बताता हूँ। उन्होंने ये डिमांड भी रखी तुम यहाँ रहोगे मेरी बेटी के साथ? हाँ ये बोला था उन्होंने,
ये पकड़ लिया उन्होंने ये बोला था उन्होंने। तो मैंने कहा देखिए मैं ये पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि मेरी माँ है वहाँ पे, अकेली है, तो मैं उसे छोड़ के तो यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं आपका बेटा बन के रहूँगा और जब आप मुझे बुलाओगे, जब आपको आपकी बेटी से मिलने का मन करेगा, मैं तब आ जाऊँगा, चाहे आप 2 महीने में कहो चाहे हर महीने कहो। ये मैंने कह तो दी उत्तेजना में लेकिन इसमें खर्चा बहुत था तो मैंने कह दिया क्योंकि मुझे उनको कहीं ना कहीं कन्विंस करना था। सही बात है। ठीक है, तो उनको कन्विंस किया। फिर वो एक टाइम आके वो इमोशनल हो गए थे, इसके फादर जो इमोशनल हो गए थे, आंखों में दिख गया था। तो मैं उनके पास बैठा, उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करो और ये समझ लीजिए आपको एक बेटा मिल गया। तो वो जो इमोशनल चीज़ें वहाँ पे हुई तो उससे इसके फादर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरे प्रति। लेकिन कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी के लिए, अब मैं अपने लेके सोचूं, आप लेके सोचो, कल को आपका बच्चा होगा, बेटी हुई, कोई बाहर से आया बोले हाँ मुझे आपकी बेटी से प्यार है, शादी है, तो जाहिर सी बात हम नहीं करेंगे भाई। तो यही चीज़ है। उसके बाद ये राउंड 2 हुआ, राउंड 2 में इन्होंने प्यार टेस्ट करा, राउंड 3 में इन्होंने जो फाइनेंशियल चीज़ है वो मेरे सामने रखी। क्या क्या पूछा? राउंड 3 में कि मेरी जॉब के बारे में, बहुत कंफ्यूज थे जॉब के बारे में, और सच में उस टाइम ऐसा जॉब भी नहीं थी, सिर्फ यूट्यूब, वो कुछ यार क्या होता है यूट्यूब में इतना 3000-4000 सब्सक्राइबर। बता दिया था वैसे आपने यूट्यूब करता हूँ। उनको वीडियोस दिखाई दी थी। मैंने कहा इससे पहले मैं करता था जॉब, अगर वो कहोगे तो मैं सर्टिफिकेट आपको दिखा दूंगा कंपनी का, और मेरे पास अभी जो भी है ना सेविंग्स है, लेकिन हाँ मैंने MBA कर रखा है तो मेरे को जॉब। समझ आया उनको ऐसे यूट्यूब क्या होता है? ट्रांसलेटर। वैसे यहाँ पे यूट्यूब इंस्टाग्राम बैन है। वहाँ सब बैन है। वो इसके पेरेंट्स खुद यूज़ नहीं करते। अच्छा, हाँ, वो नेशनल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। क्या क्या ऐप्स है वहाँ पे? अगर आप वहाँ पर ईटा है, ईटा व्हाट्सएप की तरह होता है। व्हाट्सएप की तरह होता है, और कंटेंट देखने के लिए क्या, अगर किसी को जैसे वीडियोस देखनी है, यहाँ पे यूट्यूब है, वहाँ पे क्या है? व्हाट काइंड ऑफ, मेरे ख्याल से टेलीग्राम है, आई थिंक टेलीग्राम। टेलीग्राम तो बातें करने के लिए होता है, उसी में वीडियो शेयर्स होती है। इज देयर एनी प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक सेम एज यूट्यूब? Same, no. No. It is, no, it is. YouTube is very much unique. No, we don't have it. We like, for example, Rupika, Surush, and Ita that we have, those applications that are national, those are like something like a WhatsApp, like something like WhatsApp. Okay, messaging. Just you can talk on that. Okay. Is there a dating app also there? Dating app, we have it, but in Islamic way. Okay. गवर्नमेंट की है। Because only and only under this condition that platform can be successful or even get public and official, that it be under the rule of, like Islamic rules. Okay. So no live-in culture allowed. No, the couples cannot be staying in a live-in relationship. No, it is like this that, for example, if even I don't remember the name of it, but I think Hamyar maybe. No, I don't remember. But the thing was that, for example, they each person, like both boy and the girl, both of them, they have some information on their profile, as far as I know. Then they start chatting. They start like maybe not in a not in a very much friendly way. Their family must be Okay, so it's for the marriage, not for casual dating. मैट्रिमोनियल वेबसाइट। Matrimonial, yeah. Okay, got it. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? फाइनेंसिस का फाइनेंस के बारे में उन्होंने पूछा, जॉब के लिए बहुत कंफ्यूज थे, मैंने बताया भी, उसने भी बताया, लेकिन उनको सच में समझ में नहीं आई। उस टाइम उन्होंने हाँ कर दिया, और ये चीज़ वो शादी तक बोलते आ रहे थे कि मुझे नहीं लगता इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है। अच्छा। आपके प्रूफ करने के बावजूद भी अंकल को डाउट था? और मैं गुस्से में तो मैं इसको बोल देता था, उनसे क्या ही कहता मैं। हाँ। वो फादर है भाई, वो जैसा सोच रहे हैं वो ठीक ही सोच रहे होंगे बच्ची के बारे में, लेकिन मेरे दिमाग में ये था भाई मैं $10,000 खर्च कर चुका हूँ, एक समझ लो मैंने एक लड़की की शादी कर दी। फाइनेंशियल स्टेट के बारे में मैं क्या बताऊँ, कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता, ईरान का कौन सा लड़का कर देगा मुझे बता दो। तो ये चीज़ मैं इसको बोलता था, मैंने कहा बोल दियो कि अगर फाइनेंशियल स्टेट की बात आए। मैं जब ये लोग आए, पहले जब इसके पेरेंट्स आए थे ना, फादर आए थे इसके घर देखने। कब आए थे? मतलब ये अप्रैल में आए थे। जब मैं वापस आ गया था उसके बाद ये लोग आए थे घर देखने के लिए। स्पेसिफिकली उसी चीज के लिए आए थे कि आपकी देखे कि कहाँ घर है, क्या है? तो भाई पैसा लगाया मैंने करीब 2.5 लाख रुपए घर में, क्योंकि इसके फादर को कहीं ना कहीं ये ना लगे कि भाई फाइनेंशियली कमज़ोर हैं या ये है, सिर्फ इनको शो करने के लिए। और घर पे आए, गाड़ी देखी, सब कुछ, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली जैसी होनी चाहिए, हायर मिडिल क्लास ऐसी फैमिली है अपनी। और कहीं से भी मैं ये नहीं दिखाना चाहता था उनको कि भाई आपकी लड़की जो है कहीं गरीबी में जा रही है।
पूरी कोशिश करी बट वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। नहीं हुए घर नहीं हुए, आके वो भी? आज तक सेटिस्फाइड नहीं। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मेरी मदर तो बहुत खुश थी, अभी भी है। कैसे ग्रीट करा दोनों ने एक दूसरे को कि आपकी मदर पहली बार की नहीं अंग्रेजों से मिल रही है, हाँ इनको देखा तो कैसा था? ये भी आई थे साथ में उनके ये आई थी यहाँ साथ में उसी टाइम जिस दिन आए थे ना ये लोग, हमने उसी दिन रिंग सेरेमनी कर ली थी। अच्छा तो उस टाइम ये समझ लीजिए आप 4 मोहल्लों की भीड़ मेरे घर में थी। अच्छा क्योंकि ईरान और मैंने जो इंतजाम करा था वो ऐसा था, ईरानी और इंडिया के फ्लैग लेके आगे 2 बंदे चल रहे हैं, फिर पीछे बारात चल रही है, फिर ये मेरे साथ गाड़ी में थी। अच्छा हाँ और बिल्कुल जो इंडियन दुल्हन के उसमें थी, ये मीडिया भी वहाँ पे पूरा था, मीडिया इंडियन अटायर में पूरा पूरी मीडिया आई हुई थी वहाँ पे। और वो उन्होंने सबने कवर करा, मेरी मदद देख के इसको बस वो देख के खुश हो गई। और जब तक ये बैठी रही इसकी कोली भर के बैठी रही भाई, अभी बहू आ गई। मेरी बहू है। और इनके फादर और मदर? अब इसके फादर आए थे, मदर नहीं आए थे। अच्छा तो जब वो आए मैंने उनको बिल्कुल वैसे ही स्वागत करा, पगड़ी पहनाई और माला वाला डाली, तो उसके बहुत अच्छा लगा। you liked meeting his parents? Actually, Sam's father, he's not alive. He passed away some years ago. But I saw his mother for the first time, and that time, yeah, it was such a different. You know, actually, in the video calls that we had, we like each other. Like we had this kind of vibes, good vibe. After that, and everything changed. सास बहू वाली प्रॉब्लम हो रही है? बात ही नहीं कर पाते हैं। अच्छा हाँ सही बात है। Now, Bahu is a huni. अब हमारी आपकी माँ उस जमाने की है, हाँ। ठीक है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है, स्मार्टफोन भी नहीं चलाना आता जिनको, कीपैड चलाती हैं वो भी पूछ पूछ के। हाँ। अब वो बहू चाहेंगे बिल्कुल भाई घूंघट में आए, सुबह उठे चाय बनाए, वो उनको मिला नहीं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मुझसे नाराजगी हो जाती है उनकी कि यार जो मैं सुख चाह रही हूँ वो मिल नहीं रहा। हाँ कि बहू पैर दबाए, हाँ सेवा नहीं सेवा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो एक चीज आ जाती है ना कि हाँ इस तरीके से भाई रहे, ये इंडियन कल्चर नहीं है, मतलब इनके अंदर ये ट्रेडिशनल कल्चर नहीं है। तो वो चीज कहीं गैप आ रहा है दोनों में। भाई वैसे कुछ ना कुछ फनी इंसिडेंट तो घर में होते रहते होंगे, कुछ बताओ अगर आपको कुछ याद आ रहा है इंस्टेंटली। पहली बार हलवा बनाया था इसने, मम्मी ने कहा हलवा बना, पहली बार जब रसोई में गई हलवा बनाने के लिए, तो इसने कहा मैं ईरानियन स्टाइल से बनाऊंगी। माँ ने कहा नहीं तू ऐसे बना। तो बोले नहीं मैं ईरानियन स्टाइल से बनाऊंगा। तो वो बाहर आके बैठ गई। मैंने कहा समझा दो, तो कह रही वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक तो मुझे समझ में नहीं आता लेके कहाँ से सुनने के लिए तैयार नहीं है, कह रही वहां से बनाऊंगी। मेरी भांजी थी वो ट्रांसलेट कर रही थी उनको, मदर को। तो भाई इसने बनाया हलवा, इसने अपने ईरान के तरीके से बनाया कच्चा हलवा। खाने में कैसा था? मैंने तो खा लिया, मैंने तो तारीफ ही करी उसकी। हाँ। माँ ने भी खा लिया क्योंकि उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। तो उन्होंने खा लिया, उन्होंने कहा अच्छा है। कैमरा के सामने आंटी खा रही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया बेटा। और बना भी इतना सारा लिया। फिर उन्होंने कहा देख मैं तो खाऊंगी नहीं, मुझे डायबिटीज है, और तू खा ले, इसे खिला, और बचा हुआ गौशाला में दिया। अच्छा तो क्योंकि वो कच्चा था। हाँ। ये भी समझ गई बाद में। तो मैंने इसको समझाया, मैंने कहा उनको सुना कर तू ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा है कि वो बताती अपने तरीके से, ये करती अपने तरीके से। ये भाई वैसे भी होता है, सास बहू में बनती ही नहीं है, भले ही इंडियन से कर लो, बाहर अंग्रेजन से कर लो। भाई वैसे अगर अभी की बात करें करंट सिचुएशन की, ईरान में वहाँ पे वॉर अभी चल रही है, हम सोशल मीडिया पे देख पा रहे हैं, तो आपकी फैमिली ने कुछ बोला नहीं, आपको ऑब्जेक्टिफाई नहीं करा, मतलब वो कुछ नहीं? जिस टाइम मैं ईरान में था, शादी के लिए अभी गया था, उसी टाइम ये वॉर वाली सिचुएशन हुई थी। जब मैं बताता हूँ, जब मैं ईरान में पहुंचा तब वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे रईसी, तब हेलीकॉप्टर क्रैश में वो उनकी दुर्घटना में वो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर जब मैं तेहरान पहुंचा तो इस्माइल हानिया, उस दिन इस्माइल हानिया को निपटा दिया इजराइल ने, ठीक है। तो उस टाइम वॉर सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मेरे भाई बहुत ज़्यादा टेंस था, मुझे फ़ोन करके बोल रहा भाई तू आ जा। वो कंट्री स्टेबल नहीं है कि उसका कुछ नहीं पता कब अटैक हो जाए। तो घर वाले बहुत ज़्यादा टेंस थे कि तू उसे लिया, जबकि मैं अंदर था, कुछ नहीं था भाई। लोग बिल्कुल बेफिक्र थे वहाँ के, क्योंकि मैं बात करता रहता था, इंटरेक्शन करता रहता था। इवन इसके जो मामा वगैरह हैं वो पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, वो भी कह रहे हैं अरे रिलैक्स रखो, कुछ नहीं होना। Let me say also, sorry, this thing. Actually, the thing is that social media, when like about wars and the same, like wars between Israel and Iran, all this thing about all the affairs between these two countries, it is so like in social media you are just thinking when you look at the social media and when you are just scrolling with, among the videos, you are like this that oh my god, now Iran is going to hell, okay? But actually now you call your father, mother and friend and they say that
We are in the party. We are in the party. Like that, like this. Actually, nothing is happening. Social media is so different from the reality. In social media, always there is exaggeration. अब आप हमारी मीडिया को देख लो, उनके मैं देखता हूँ उनमें साफ ही लिखा होता है कि ईरान को इजराइल ने निपटा दिया, ईरान में तबाही, इस तरीके की चीजें आती हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। ओके जो ये इजराइल और ईरान की जो चीज़ है ये सिर्फ गवर्नमेंट चीज़ है। और भाई आप सिंस आप एक हिंदू हो तो आपको ऐसा लगा क्योंकि ईरान एक इस्लाम कंट्री है तो वहाँ जाकर आप अनसेफ फील कर रहे हो या लोग आपको थोड़ा आउटसाइडर फील करा रहे हैं या वेलकमिंग नहीं है, ऐसा लगा आपको? और मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ इसी बात से। मुझे लैपटॉप में अपने VPN करवाना था, तो मैं फ़ाइज़ा के साथ गया हैमदान में, बू अली स्ट्रीट है वहाँ पे, मुझे VPN इंस्टॉल कराना था। तो उसने करा और मेरे लैपटॉप पे माता की फ़ोटो लग रही है, तो वो लगी है, उसने छूटते ही कहा शिव शिव। तो मतलब उनका रिलीजन से कोई हेटरेट है ही नहीं, ठीक है। इवन जब लोग मेरे गले में माला देखते थे तो वो यही कहते थे कि आर यू डू मेडिटेशन, यू आर डूइंग मेडिटेशन, कैन यू टेल अस। तो मैंने उनको बताता भी था। तो वो लोग जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उसमें कहीं भी रेडिकलाइजेशन नहीं है। जो भी है उनका, चाहे वो मुस्लिम्स हैं या दूसरे भी रिलीजन हैं ईरान के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ नहीं है कि भाई अगर तुम हिंदू हो तो तुम मेरी नज़र में काफिर हो, वो नहीं है। 1% जो काफिर रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके रिलेटिव्स मेरे लिए अलग बर्तन में खाना बनाते थे क्योंकि वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे, वो मेरे बिलीफ की रिस्पेक्ट करते थे। वो मुझे कभी फोर्स नहीं करा कि अरे चिकन खाओ चिकन, कभी नहीं, क्योंकि इसके मामा इसके चाचा सब। तो भाई हम थोड़ा ऑफ ट्रैक चले गए, वॉर पे चले गए। अभी आपके घर पे रिंग सेरेमनी हुई, इनके फादर आए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे हुआ, आप लोग वो कैसे माने और मैरिज कैसे हुई, थोड़ा क्विकली बता दो ताकि हमें रूल्स पता रहे। या मतलब यू वांट टू से दैट थिंग? That thing. विच थिंग? In Hindi. इन हिंदी। Okay. Do you understand that no, Hindi. मैं छोटी छोटी बोल सकती हूँ। छोटी छोटी, ओके। So, let me ask a question. In Hindi, in Hindi it means मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। हाँ, सकती हूँ। हाँ जी, पूछ सकते हो आप, बिल्कुल पूछो। So, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? No, single, all 3 single. Really? Yeah. So, मेरी बहुत सुंदर फ्रेंड्स, सुंदर दोस्त ईरान में है। भैया नंबर दो जरा जल्दी। भाई आप तो बढ़िया सिखा के लाए हो। 4 टिकट बुक होनी चाहिए। अब हम चारों जाएंगे। चारों भाई गैल जाएंगे, वहीं करेंगे पार्टी। वहीं चलेगा सिस्टम। और सबसे बड़ी बात है, तेल 4 रुपए लीटर है वहाँ। अच्छा जी, हाँ 4 रुपए। पर आप बता रहे थे कि लड़कियों के साथ वहाँ कॉमनली घूम नहीं सकते आप ऐसे? घूम सकते हैं आप, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन, अगर आपको देख लिया, जैसे मतलब मैं तो फॉरेनर दिख रहा हूँ वहाँ पे कि मैं फॉरेनर हूँ, इसको देख लिया, बोले ये कौन है, तो या तो ये होस्ट है मेरी, होस्ट सिस्टम बहुत है वहाँ पे। होस्ट सिस्टम क्या होता है? होस्ट मतलब जैसे हमारे यहाँ होटल्स लेते हैं तो वहाँ पे होस्ट हैं। काउच सर्फिंग। राइट, काउच सर्फिंग। तो अपने घर पे ठहराते हैं वो फॉरेनर्स को, और अपने जो भी पेमेंट वगैरह लेके वो सब जगह आपको खुद लेके जाएंगे। अच्छा, अगर कोई रैंडमली कोई पूछता है तो ऐसा बोलो कि ये हमारे होस्ट है। हाँ, ये होस्ट है। तो जैसे लड़की अगर दोनों वो हैं, लड़का लड़की रहनी नहीं है, तो उनका तो वो बना ही देते हैं बहाने, जैसे अपने यहाँ करते ही हैं कि भाई मेरा दोस्त है, मेरा कलीग है, मेरा भाई है, कौन जा रहा है। तो ऐसा पूछता कौन है? पुलिस पूछती है? वहाँ पे 2 तरीके की पुलिस है, ये तो खैर सबको पता है। एक तो जो क्राइम देखते हैं, दूसरी मोरालिटी पुलिस है। तो मोरालिटी पुलिस क्या क्या देखती है? वो ये देखती है ड्रग्स, हिजाब, क्लोथिंग, जो रिलीजियस क्लोथिंग होनी चाहिए। लड़कों के लिए भी कुछ रूल्स है क्लोथिंग के? हाँ, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते आप वहाँ पे। अच्छा, निक्कर नहीं पहन, कोई भी ट्रैवलर भी नहीं पहन? कोई भी नहीं पहन सकता। अच्छा, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते आप। But Sam, in some part of our country, like the north of our country, in which there are the coasts, and beaches, there the people, yes, they can wear. on beaches. On beaches. But not those places that it is uncommon, because it is not in Even something. the girls can wear their swimsuits on the beaches. No. हाँ भाई। अब इतना भी नहीं है, देखो भैया लिमिट में। हाँ। ठीक है। तो भाई ये 2 चीज़ें हैं वहाँ पे। मोरालिटी पुलिस ये चीज़ देखती है, और ड्रग्स देखती है। लड़का लड़की जो है
किस तरीके से तो क्या वो रैंडम स्ट्रीट्स पे मोरालिटी पुलिस रहती है, कोई लड़का लड़की पे शक हुआ तो वो जाके पूछ सकते हैं आपसे कि हु इज ही, हु इज हाँ 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 और बिल्कुल। अगर बाय चांस लड़की ने ये बोल दिया कि आई डोंट नो दिस गाय और ये मेरे को तंग कर रहा है, तो सीधा अंदर। हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं है। वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, वुमेन डोमिनेंसी घर में है लेकिन उनके लॉ में नहीं है। लॉ जो है वो मैन को फेवर करते हैं। अच्छा, हाँ, अगर आप जैसे कोई लड़की शिकायत भी करेगी ना किसी लड़के की कि इसने मुझे छेड़ा, इसने मुझे बदतमीजी, तो लड़के को ऐसा नहीं है पकड़ लिया कर दिया, तो पहले उसको पूछताछ होगी प्यार से। अगर उसकी चीज़ उसे वैलिड लगी तो छोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ, अगर उसने ये भी बोल दिया ना कि इस लड़की ने हिजाब नहीं पहना था, तो फिर लड़की की नहीं सुनी जाएगी। अच्छा, और घर के अंदर फीमेल डोमिनेंस कैसे ज्यादा है? क्योंकि जब घर के अंदर फीमेल डोमिनेंस ऐसे है भाई, जब शादी होती है ना, जैसे मेरी इसकी शादी हुई है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे हर मुस्लिम्स में होता है, तो इनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में ही डोमिनेंसी बताई दी जाती है। अच्छा, क्या? जैसे इसके जो राइट्स हैं वो मेरे से ज़्यादा हैं। क्या क्या राइट्स है? जैसे पहला राइट, कभी वैसे होगा नहीं, कभी ऐसा होता है हमारे बीच में ब्रेकअप होता है सेपरेशन तो वो इसका राइट है, मैं नहीं दे सकता सेपरेशन का। बच्चों पे इसका राइट है, अगर होता है तो वो बच्चे जैसे चाहती है वैसे पढ़ा सकती है। तो जहाँ वहां पे ये चीज नहीं है 3 तलाक वाली की, 3 बार तलाक बोला और तलाक। वहाँ तो लड़की ही कॉल आउट कर सकती है मैरिज, आप कॉल आउट नहीं कर सकते कि मेरे को नहीं रहना साथ में। बैंड बजा सकती है वहाँ पे लड़के के, ऐसे रूल्स हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो रूल है, जो सबसे बड़ा मतलब ब्रह्मास्त्र है, वो है कॉइन्स। जब मेरी जो हमारे बीच में जो हुआ था और जो उसके फादर ने कंडीशन रखी थी, तो इरानियंस कॉइन्स होते हैं, हर कॉइन की वैल्यू $500 होती है। तो इसका सोलर ईयर चलते हैं वहाँ पे, तो इसके जो सोलर ईयर है वो आई थिंक 1400 है, जो सोलर बर्थ रेट। No. Somehow, yeah. 1379. 79 ये कॉइन्स की वैल्यू रखी गई थी। अच्छा, और एक कॉइन की वैल्यू है $500 तो अब टोटल आप इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बना लगभग? 50 करोड़। 50 करोड़। तो 50 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट डाला गया है कि अगर जब चाहे तब ले सकती है, जब चाहिए तब आपसे मांग सकती लेकिन सेपरेशन के बाद ना, पहले भी ले सकती है। मतलब इनका मन करे तो कभी भी मांग ये महीने में भी ले सकती है, साल में भी ले सकती है, जब ये चाहे तब ले सकती है। और अगर आप नहीं दे पाओगे, मतलब अगर आप दे ही अगर मैं ईरान में हूँ और मैं नहीं दे पाया तो मैं गया अंदर। अच्छा, एक कंडीशन है कि आप ईरान में होने चाहिए उस टाइम पे। अब तो भाई मेरे पे लागू ही नहीं होंगे ना ये नियम, मेरे पे तो नियम इंडिया के लागू होंगे, तभी तो मैं साइन करके बैठ गया वहाँ। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट बना। अब ये मतलब शादी तोड़ भी सकती हैं, बच्चे भी इनके पास रहेंगे, पैसे भी इनको मिलेंगे, और क्या क्या फेवर में होगा इनके? घर तो वो तो अपने यहाँ भी है, घर आधा, और जितनी प्रॉपर्टी है वो 50% है, ठीक है। दूसरा, ये कभी भी कंट्री छोड़ सकती है जब ये चाहे। कंट्री छोड़ सकती है? हाँ, जब ये चाहे तब ये कंट्री छोड़ सकती है। ये ऐसा प्रेशर नहीं होगा इस पे कि मैं इसको रोक लूँ। अच्छा, ये आपके लिए कस्टमाइज करवाया गया था? हाँ, वो इसके लिए है, इसके फादर। मतलब ऐसा नहीं है ये हर मैरिज में होता है? हाँ, यही जो आप लिखवाना चाहो कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखवा लो, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लो। जैसे एक और चीज़ इनके फादर ने लिखवाई थी कि अगर ये जॉब करना चाहे तो जॉब करने दी जाएगी, पढ़ाई पूरी करनी चाहेगी तो पढ़ाई पूरी करने दी जाएगी। तो ये सारे पूरा इसके फेवर में था। भाई, अब आपने पेपर से तो शादी कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, इंडियन कल्चर के हिसाब से शादी करी आपने? भाई बस अब ये शुरू हो जाएंगी शादी अपनी, तो उसी में हमारी एक तिथि निकली है। जब देव उठ जाएंगे उसके बाद? हाँ, देव उठान होता है, उसके बाद जो है हम फेरे करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, कोई बैंड बाजा नहीं, कुछ नहीं। वो तो आपने कर ही लिया, इंडिया का झंडा, ईरान का झंडा, वो सब तो हो ही गया। मतलब वहां पे सिर्फ आपकी साइन करके मैरिज हो गई, कुछ आपका निकाह नहीं हुआ ऐसा कुछ? मतलब ईरान में ऐसे ही शादी होती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही होती है? उसमें क्या होता है ना, ईरान में ना जगह जगह मैरिज हाउसेस बने हुए हैं, मैरिज ऑफिसेस। तो मैरिज ऑफिसेस में सब अपनी फीस लेते हैं, उनका एक वकील होता है, और ऑफिस में ही ना, मैरिज ऑफिस में ही एक छोटी सी गैदरिंग और बैठने का सिस्टम है। वो वहाँ बैठते हैं, वकील होता है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है, और फिर वो लड़का लड़की आके साइन कर देते हैं, और फिर मुबारकबाशी। अच्छा, बस इतना ही। और पार्टी कैसे होती है, दावत कैसे हुई? ये हो गई कोर्ट मैरिज। उसके बाद सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रेशन ये आप कहीं भी दे सकते हो, जितनी आपकी औकात है, जितना आपकी हैसियत है, आप उस हिसाब से दे दो। जैसे हमारी जो शादी हुई थी वो 15 मई को हुई थी, 15 मई को हमारी कोर्ट मैरिज हुई, और ये इसी तरीके से हुई। वकील बैठे थे, वो इंटरनेशनल वकील था क्योंकि ये इंटरनेशनल मैरिज थी। तो हमने जाके साइन करे, हमारे जितने लिमिटेड रिश्तेदार थे वहाँ पे मिठाई बाटी, हो गई शादी। उसके बाद हम साथ रहना शुरू कर दिया था हमने, ठीक है। उसके बाद फिर 4 जुलाई को जो है मैरिज का सेलिब्रेशन हुआ, जिसमें ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि ये दोनों शादीशुदा हैं।
और शादी भी ऐसे मैं गया, ये उसमें कल्चर ही होता है, जैसे लड़की होती है वो ब्यूटी पार्लर में, लड़का जाएगा ब्यूटी पार्लर से लेने लड़की को, अच्छा ठीक है, बुके देगा, लड़की का हाथ पकड़ेगा, गाड़ी में बैठाएगा, गाड़ी से उसको लेके जाएगा बैंकेट हॉल तक या मैरिज हॉल तक, वहाँ रिश्तेदार जो है वेट कर रहे हैं, फिर वहाँ से हाथ पकड़ के अंदर लेके जाएंगे, सब लोग क्लैपिंग करेंगे। कई जगह जैसे हम मेरी उसमें ऐसा हुआ था, मैन वुमेन सेपरेट थे, कई जगह नहीं भी होते हैं, तो हमारे यहाँ जो हम वुमेन्स के पार्ट में हम लोग बैठे, तो जैसे हम एंटर हुए वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ वो उतारते हैं ना, क्या बोलते हैं उसके, आरती उतारते हैं और बलाए लेते हैं, इस तरीके का होता है गुलाब के फूल से, तो वो सारी चीज़ें हमारी हुई, मेरे लिए नया था। और टॉफ़ी, जो लड़की की जो बहनें और फ्रेंड्स होंगी वो टॉफ़ी मारेंगी फेंक के, अरे बड़ी तेज टॉफ़ी लगी मैं तेज माथा फोड़ दिया। माथा, हाँ भाई मैंने यूँ कर रखा था, टॉफ़ी मार रही थी फेंक फेंक के। फिर मैं इसको लेके फिर जहाँ स्टेज होता है वहाँ बैठ जाते हैं हम। उसके बाद लड़के को ज्वेलरी लेनी होती है लड़की के लिए, माँ बाप नहीं लेके देते, लड़का ही लेके देगा, तो मैंने वहाँ ज्वेलरी खरीदी थी। मेरे मतलब फादर तो बना के गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए खरीदी थी मैंने वहाँ पे ज्वेलरी। वहाँ मैंने इसको जो ज्वेलरी दी वो अनाउंस होगी, ये ज्वेलरी है। अच्छा, बात लगन बात लिखे जा रहे हैं, चिट्ठी पड़ी जा रही है ऐसे यहाँ पे, क्या जैसे रिश्ते पे होता है ना कि ये मिला है लड़के को, तो ये दिया है लड़के ने। हाँ, फिर एक बार फिर वकील आएगा, वकील पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेगा, ठीक है, और फिर सब लोग लड़का कहेगा कॉन्ट्रैक्ट से आप राजी हो, बोले हाँ जी हमसे राजी, लड़की राजी, बोले राजी, बेले बोलते हैं, बेले, यस बेले। तो मैंने बोला, इसने कहा जब मैं यूं करूं तो बेले बोल देना, तो जिसने यूं करा मैं बेले हमें क्या पता क्या बोल रहा हो तो हमने बेले कर दिया, वो चले गए अपना बेले करके। तो उसके बाद वो गोल्ड जो है, वो जो महिलाएं थी उन्होंने बताया कि भाई लड़के ने गोल्ड दिया है, अब वो गोल्ड मुझे इसको पहनाना था। उसी टाइम मैंने इसको पहनाया, रिंग पहनाई, जो रिंग जैसी मैंने पहनाई शादी हो गई। चलो, मैंने रिंग पहनाई, हाथ ऊपर करा, हाँ। माथा चूमना जो भी है, उसके बाद डांस प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वही सब भाई डांस तो बहुत तगड़ा करते हैं वहाँ सिंक में, है ना, ऐसे बैठ के वही करते हैं, एक पैर पे ऐसे बैठ। हाँ, वो कुर्दिश है, वो कुर्दिश डांस है, जो उनका डांस है यार। अगर हम लोग लड़के करेंगे ना तो हमको गे बोलेंगे, अच्छा, ठीक है। वो इस तरीके से ऐसे करके, मतलब वो बहुत लहर खा लचक वाला डांस लड़के करते हैं, लहर मारते हैं बहुत तगड़ी। म्यूजिक कैसा है? वैसी ईरानियन म्यूजिक है, अच्छा, बहुत अच्छा म्यूजिक है ईरान में। हाँ भाई, आपने डांस नहीं करा वहाँ पे? मैंने भाई इंडियन भंगड़ा मारा वहाँ पे है, और मुझसे 3 बार कराया इन्होंने। अच्छा जी, कौन से गाने अपने ही बजाए थे, उनके ही गानों पे हाँ, अपने बजाए थे साडी गली। अच्छा जी, या और मैंने जो भंगड़ा करा वो इसकी जो मौसी है वो है, उन्होंने मुझे 3 बार नचाया, बोले हमें देखना है। मैं तो देखो किसी ने करा भी कॉपी? हाँ करा। अच्छा, बढ़िया मौज काटी मतलब। हाँ भाई, you liked his dancing moves? Yes, actually, I like, but I know that even he said to me that before, right now is he said to me that after his father death, he didn't dance that much, actually at all, and so it was in our marriage he. After that thing, it was the first time that he आप had अपनी danced. मम्मी को लेकर गए थे मैरिज में? वो वीडियो कॉल पे थी। Okay, his mother was on the video call. Yeah, and not actually. Even we had a live, so here they could watch. हाँ, मैंने उस टाइम YouTube पे लाइव कर दी थी शादी। ओह, हाँ, मैंने लाइव करी थी, और मैं ये दिखाना भी चाहता था लोगों को। मैंने कहा यार इस तरीके से होती है। जो मेरा बाद में जो कंटेंट बन गया वो मेरा शादी के ऊपर ही आ गया कि भाई ये ट्रेडिशन होता है। तो खैर नेट उतना बढ़िया नहीं चला, लेकिन हाँ लोगों ने बहुत मजे करे, उन्हें एक नई चीज देखने के लिए मिली। अच्छा, फिर डांस वांस हुआ, उसके बाद क्या हुआ? डांस वगैरह करा हमने, और उसके बाद जो था भाई, मैं अपना इंडिया का फ्लैग ले आया। उस टाइम जाने का टाइम आ गया था हमारा। इंडिया का फ्लैग लाया, वहाँ पर रेज हुआ, सबने क्लैपिंग करी, सब खड़े हो गए फ्लैग देख के, अपना हमारा भारत का फ्लैग देख के सब लोग खड़े हुए हैं, बकायदा क्लैपिंग करी है। फिर मैंने इसके हाथ में फ्लैग पकड़ाया, वहाँ पे फोटो सेशन हुआ, हाथ पकड़ा, फिर मैं इसको ले गया। और उसके बाद एक और रस्म होती है, जब मैं इसको कार में ले जा रहा था तो ये होता ब्राइड फॉलो, पीछे से कारें फॉलो करती हैं। अच्छा, काफिला सा चलता है। और खूब लड़कियां चीखती हैं, जैसे कोलकाता में होता है ना, इस तरीके। वहाँ कैसे चीखती है? How they scream? I don't know. Even I don't know. It is hard for me because I'm at a. I don't know. It is like Can you do it? It is. Sorry, I don't know properly, but like like that. I don't know how to do it.
with some kind of a screaming sound. Now my throat is not good, but तो भाई वो फॉलो करते हैं पूरा, मतलब पूरा पूरा हैमदान के चक्कर मारते भाई हैं। वैसे देखा जाए तो आपकी साइड से सिर्फ आप ही थे, कोई था ही नहीं कोई मतलब? नहीं था भाई, हाँ अकेला ही था मैं। मिस कर रहे होगे आप घर वालों को। उस टाइम आज जब वीडियो कॉल करी ना मैंने मदर को, थोड़ा इमोशनल हो गया था उस टाइम। हाँ भाई आएगी घर वालों की याद। बताओ कहाँ पैदा हुए, कहाँ जाके शादी करी, और भाई वहाँ का डांस कर रहे हैं, बताओ तगड़ा तगड़ा। मम्मी अंदर ही अंदर गाली भी दे रही होगी कि तू आ तो सही, तुझे बताती हूँ। कूटूंगी आज तुझे। ना हाँ ये तो हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा आप चलना चाहो चलो, लेकिन उनको फ्लाइट से लगता है डर भाई। हाँ तो वो एक रहता है ना, तो वो नहीं गए। तो भाई जब मैं लड़का जो है कभी वुमेन्स साइड जाएगा, मैन साइड जाएगा, तो जब मैन साइड में गया तो सब लोग खड़े हो गए थे, और सब लोग बिल्कुल, मैं तो भाई इस तरीके से अपना, वो सब लोगों ने हाथ मिलाया बढ़िया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान में ईरानियन एम्बेसी में भी थे, अच्छा वो भी मिले, वो हिंदी में बात कर रहे थे मेरे से। अच्छा हाँ तो वहाँ ये इस तरीके का कल्चर हुआ, सबसे इंट्रोड्यूस हुआ मैं, और उसके बाद डांस शुरू, हमने कुर्दिश डांस करा। कुर्दिश डांस वैसे करके होता है, ऐसे वो हाथ में रुमाल लेके इस and तरीके it's a move on. The Kurdish dance is like this, that you have to move your shoulder ओनली like this, और पैरों को ऐसे ऐसे करना। and the feet, but the focus must be बहुत here बढ़िया, more. कुर्दिश कल्चर मेरे को बहुत बढ़िया लगा। फिर उसके फॉलो किया, उसके बाद क्या उसके फॉलो करा, हम घर पहुंचे, वहां भी इस तरीके से दोबारा से वो होती है, नजर उतारी जाती है, और फिर वहाँ वो वाले गेम नहीं होते, दूध में अंगूठी गेर दी और कौन ढूंढ ऐसे कोई गेम्स नहीं होते कपल्स के कि किसका राज चलेगा और ना ऐसा? ना भाई वो राज कर तो दिया, कॉन्ट्रैक्ट में सारे राज बना दिए, उसे दे दिए सारे राज। ये भी ठीक है। अच्छा आप बता रहे थे आप सारे रिलेटिव्स के घर जा रहे थे, तो ऐसा होता है कल्चर की सब आपको रोटी पे इनवाइट कर? हाँ ये शादी के बाद सारे रिलेटिव, जितने भी क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, वो अपने घर पे इनवाइट करते हैं और गिफ्ट देते हैं। वहाँ पे गिफ्ट के रूप में गोल्डन कार्ड चलता है, गोल्डन कार्ड और क्रेडिट कार्ड, उसमें कुछ में अमाउंट बैलेंस होता है, Credit card or those golden actually coin in some kind of, yeah. उसे अपने हिसाब से जो आपको चाहिए वो ले आओ। तो वो जाते हैं, हम लोग उनके घर पे जाते हैं। मैं जैसे तेहरान गया था और तूसेकान गया था, तो वो बढ़िया अरेंजमेंट करते हैं वो हमारे लिए। अच्छा ये तो बढ़िया चीज़ आपके लिए सब वेज बन रहा था, अलग बर्तन। और आप बता रहे थे आप पैर भी छू रहे थे वहां जाके सब? हाँ भाई मैं जितने भी बुजुर्ग थे वहाँ पे, इवन जिस हॉस्टल में भी मैं था, तो उसकी मदर थी। अच्छा भाई वहाँ पे लोग, बड़ी एज उनकी 90 100 साल है, जो बुजुर्ग थी उनकी भी मदर थी। तो मैं जब पहली बार ईरान गया था तो मैं उनके पैर छू के वापस आया था। ठीक है, तो मैं कहीं भी अपना कल्चर, मैंने ये नहीं करा कि भाई मैं दूसरे देश आ गया तो मैं अपना कल्चर भूल जाऊँ। ठीक है, अगर मैं अब हे डैड हे मॉम करूँ, ये नहीं होगा। तो अगर मैं भाई सलाम तो हमारे यहाँ जैसे नमस्ते करते हैं, उनके यहाँ सलाम करते हैं, कोई लैंग्वेज तो है नहीं, लेकिन मैं उनको अपना एक कल्चर ज़रूर दिखा के आता था कि यार हमारे यहाँ इस तरीके से जो है रिस्पेक्ट दी जाती है। ये बढ़िया चीज़ करी भाई आपने। तो चाहे वो उसकी दादी हैं, नानी हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, सबके पैर छुए। बाबा से मैं जब भी मिलता हूँ, उसके फादर से तो पैर छूता हूँ, मदर से जब मिलता हूँ पैर। भाई आपकी वहाँ पे शादी वादी हो गई पूरी प्रॉपर, फिर अब आप इंडिया आए जी भाभी को लेकर, तो फिर कैसा था? भाई इंडिया आए, इंडिया में फिर से स्वागत हुआ। रूल्स रेगुलेशंस क्या है भाई? एंट्री वीज़ा लिया उसने, और एंट्री वीज़ा उसको बहुत मुश्किल में मिला है। मुश्किल में इसलिए मिला है क्योंकि हमारी यहाँ पे लीगल मैरिज हुई नहीं थी। मतलब हमें मैरिज सर्टिफिकेट जमा करना था एम्बेसी में, बट एम्बेसी के जो ऑफिसर थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया था यार, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। मैं मिला उनसे, मैंने ऐसी जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ ना, थोड़ी ज़्यादा उसमें उनको बता दिया कि हाँ छोटे उसमें कि हाँ सर ऐसे ऐसे शादी हुई थी। तो वो बहुत खुश हुए, कह रहे अरे बहुत बढ़िया। और फिर उन्होंने कह रहे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें एंट्री वीज़ा मिल जाए, अदरवाइज़ उसको टूरिस्ट वीज़ा मिलता और उसको फिर एग्जिट करना पड़ता 3 महीने बाद। अच्छा, तो फिर उन्होंने इसका एंट्री वीज़ा करा दिया। मैं खुद एम्बेसी में मिठाई दे के भी आया। हाँ, तो वो याद, अभी तक उनको याद होगा कि हाँ अगर आया था। तो फिर ये एंट्री वीज़ा पे इंडिया आए हम लोग। इंडिया आके फिर हमारा स्वागत हुआ, एयरपोर्ट पे दोस्त वोस्त आए थे, वहाँ पे अच्छे से स्वागत हुआ। फिर मैं अपने गुरुजी के पास गया, उनसे आशीर्वाद लिया। फिर अपने घर गया, वहाँ पे पूरी गैदरिंग थी, वहाँ फिर से स्वागत हुआ, मीडिया आई वहाँ पे। और फिर जो है इस तरीके से हमने घर में एंट्री कर ली। अब बस अगला प्रोसेस यही था हमारा कि हम लीगल तरीके से मैरिज कर लें। वो भी 18 तारीख को एडीएम सिटी में हमने जो है वो भी फाइनल कर तो दिया। आप जैसे लीगली अब आप शादी कर लोगे तो उसके बाद ये कितने टाइम तक भी रह सकते हैं? जब ये 6 महीने का है एंट्री वीज़ा, X1 वीज़ा भी बोलते हैं इसको। फिर इसको हमें रिन्यू कराना पड़ेगा, वो कुछ पेमेंट वगैरह करके जो भी फीस होती होगी। अगर ये 2 साल तक इंडिया में रहती हैं लगातार तो इनको OIC कार्ड मिल जाएगा। हाँ, और फिर सिटीजनशिप के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन अभी तो कुछ आसार लग नहीं रहे अभी तो थोड़ा एडजस्ट ही कर रही है। सच बात तो ये है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। नहीं वो भाई होता ही है, कल्चरल डिफरेंस, हवा पानी का डिफरेंस, खाना, लाइफस्टाइल, बहुत अपसाइड डाउन हो जाती है लाइफ। बट मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, अब हमारी बात भी हो रही थी कि बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, थोड़ा बताओ। थ्रेड्स तो भाई पहले से ही थे, जब से वीडियोस में बता दिया था मैंने, लेकिन जब अब वापस आया ना परमानेंटली, वो वापस आ गई है। और इस बार जो चीज़ें स्प्रेड हुई हैं, उस टाइम तो 3-4 हज़ार ही सब्सक्राइबर थे, अब तो खैर 37,000 कुछ हैं, 37,000 से ऊपर है। तो अब ज़्यादा जो है वीडियोस को जगह जगह देखा जा रहा है, चाहे पाकिस्तान में बहुत जगह देखा जा रहा है। कहाँ कहाँ से आपको थ्रेट्स आ रहे हैं? फिलहाल जो मुझे अभी रिसेंटली जो थ्रेट आया है, वो लड़का मेरे को कोलकाता का पता लगा है, कोलकाता में कोई गया है जगह, वहाँ से है वो। क्या बोलते हैं, क्या बोला? उसने फाइज़ा को पहले तो जैसे अब इसका भी पब्लिक अकाउंट है, तो इसने फ़ोटोज़ वगैरह लगाया अपने, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इसके मैंने इसको मना भी कर रखा है, यार रिप्लाई मत कर हर किसी का, ठीक है ऐसे तो हो गई। अब इसकी आदत है, किसी ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, वो ईरानियंस हैं ही ऐसे, तो वो थैंक यू ज़रूर बोलेगी। इसने थैंक यू बोला, उसने वहाँ से चीज़ें शुरू कर दी कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो हराम है, तेरी शादी हराम है, और तेरा बाप बेगैरत, तेरे नाजायज़ बाप, इस तरीके की बातें उसने बोलना शुरू करा। तो इसने कहा ठीक है, तेरे नाम, इसने कहा कि तुम्हारे नाम से पता लग रहा है कि तुम कितने रेडिकल हो। उसका नाम था मोहम्मद साहिल। तो भाई उसके बाद उसने बोला कि तेरा मर्डर करवा देंगे, यू शुड बी गेट मर्डर। हाँ, और मैं उस टाइम कहीं जा रहा था, इसने मेरे को मैसेज दिखाया, मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले ले इसके, बहुत हो गया। उसके बाद फिर इतना बोला इसने, फिर उसने डिलीट कर दिया वो मैसेज। तो फायज़ा ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि मेरा मर्डर होगा? तो उसने कहा कि तुमने मतलब इस्लाम के ख़िलाफ़ जाके, और तुम्हें डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो देखनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नायक जो कि वांटेड है और फ़रार है इंडिया से, तो बोले इसकी वीडियो देखनी चाहिए इस्लाम के ऊपर। तो फायज़ा ने उसको कहा कि देखो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की वीडियो नहीं देखनी, मेरा बिलीफ मेरा है, तुम्हारा बिलीफ तुम्हारा है, ठीक है, और तुम इंटरफेयर मत करो। तो ये बोलने के बाद फिर जो है मैंने इससे कहा फायज़ा से, बस इतना ले तो ब्लॉक कर दे बस बात। In my life, I haven't seen such people, really. They- As if they're not from this era, as if they're not from this era. Like, the more you think about them, why the thought is like this? Because in Iran, okay, in Iran, even Iran is an Islamic country. Why they're not like this? They're very much poisonous, that's toxic. तो फिर मतलब बेसिकली यही आ रही है कि आपने इंटर रिलीजन मैरिज कर ली, तो आपने गलत कर दिया, आपको भी और इनको भी, दोनों हाँ, को। दोनों को। तो आपने पुलिस की हेल्प ली? फिर मैंने जो है अगले दिन, मैंने 16 तारीख को जो हमारे एसएसपी हैं मुरादाबाद के, उनको फायज़ा की तरफ से एप्लीकेशन दी गई, और उसमें उनको बताया गया कि इनके खिलाफ़ एक्शन लिए सर, आप जो भी आप जांच कर रहे हैं, जिस भी तरीके से विवेचना करने के बाद जो लोग आए, एक एक्शन ज़रूर लिया जाए। एक्शन लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई मैं समझता हूँ, मैं तो उसको यहाँ पे इंडिया में रहने के लिए आई है, तो मैं समझता हूँ जब वो यहाँ रहेगी तो मैं ये नहीं चाहता कि ये जब बाहर जाए तो मैं टेंशन में हो जाऊँगी। जाएगी बाहर, मार्केट भी जाएगी, बाज़ार भी जाएगी, अब वो वीडियो अपनी बना रही है तो अपने लिए भी बाहर जाएगी, या किसी भी काम से बाहर जा सकती है। तो मेरे दिमाग में ये ना आया यार कुछ गलत ना हो जाए। दूसरा, मैंने उसमें साफ जिक्र करा, मैंने कहा इससे इंडिया की इमेज ख़राब हो रही है। वो इंडियन नहीं है, वो ईरान से आई है। उसकी जो मेंटेलिटी वहाँ पर है कि भाई इंडियन के जो माइनॉरिटी हैं उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ये है वहाँ पे, मुझे पता है। अच्छा, ये ईरान में है? ईरान में है। और जब ये यहाँ आई है और इसने ये देखा कि यार यहाँ तो इतने कट्टरपंथी हैं, तो इसको लगा कि यहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है, बल्कि ये इसका बात का पतंगड़ बनाते हैं, और ये खुद ही रेडिकल हैं, खुद ही कट्टरपंथी हैं। तो इसी चक्कर में इनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अगर सरकार एक्शन ले रही है कट्टरपंथियों के खिलाफ, तो क्या गलत ले रही है? तो ये चीज़ इसको यहाँ के पता लगी। और जब ऐसी चीज़ किसी विदेशी के साथ होगी तो जाहिर सी बात है भाई, पब्लिक फिगर है कहीं ना कहीं, कितने भी छोटे सब्सक्राइबर हैं, कम है, लेकिन पब्लिक फिगर हो चुकी है वो, उसके नाम से आप देखोगे तो पता लग जाएगा। तो अगर ये बोलेगी कि मेरे साथ इंडिया में ऐसा हुआ है, मुझे इंडिया में नहीं रहना, तो जाहिर सी बात है इंडिया की बेइज्जती है। सही बात है, इंडिया की बेइज्जती है। फॉरेनर 10 बार सोचेंगे, किसी भी फॉरेनर ने रैंडमली इसको देख लिया, इसकी वीडियो देख ली, उसने बता दिया कि भाई मुझे तो इस तरीके से थ्रेट आ रहे हैं, तो इंडियन को साफ बोलेंगे कि भाई इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर गर्ल्स। ये इमेज है भी भाई, इंडिया के बाहर इमेज है ये। भाई दिल्ली इतना फेमस है इस चीज़ के लिए कि दिल्ली सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए। ये चीज़ है। इवन फॉरेनर्स के साथ पहले बहुत घटनाएं हो चुकी। तो मैंने उसमें एप्लीकेशन में मैंने कहा इसके खिलाफ पहली बात एक्शन हो तो एक मैसेज भी जाएगा, और कम से कम ये चीज़ रुकेंगी। अभी जब से मैंने एप्लीकेशन दी है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया है, इंटरव्यू वगैरह हमने पूरी चीज़ें बताई हैं, तब से ये चीज़ें बहुत कम है।
1% है बस, अच्छा, कम हो गए थ्रेट्स। 1% है बस। चलो सही है फिर, शांति बनी रहे भाई ऐसी आपको ये सब। तो मैंने ये चीज़ उनको बोली और फिर मैंने उसके पीछे जाके देखा तो मैंने ये देखा कि कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने, जब फ़ाइज़ा पहली बार इंडिया आई थी तो मुझे वो फ़ाइज़ा को लेके बहुत ही रेडिकल बातें करी, जिससे बहुत एक कम्युनिटी स्पेशली मुस्लिम्स लोग इंस्टिगेट हुए कि वो हमारे खिलाफ हेट दिखाएं। मैंने उस वीडियो के जब कमेंट सेक्शन में मैं गया, मैंने देखा तो बाकायदा लोग ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं हम लोगों को, जिसका मतलब जो सीधी तरीके से कई लोग कह रहे हैं कि मार दो, ये कर दो, वो कर दो। तो सबसे पहले मैंने उसमें एप्लीकेशन में उस व्यक्ति का भी नाम लिखा। मैंने कहा सर आप इसके खिलाफ भी एक्शन लीजिएगा और ये जो उसने वीडियो कर रखी है इसको डिलीट कराइएगा। और बाकायदा उसके मैंने सारे हैंडल्स वहाँ दे रखे हैं। तो सर ने कहा कि हाँ, वो उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी। फिर साइबर क्राइम से भी हम गए, मैं और फ़ाइज़ा दोनों गए थे और हमने सारी चीज़ें उनके सामने ओपन करी। तो उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी आएगा, जो भी इसमें निकलेगा कल्प्रिट, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी तरीके से। भाई बढ़िया है। अभी आपके क्या प्लान्स है फ्यूचर के? अब क्या यूट्यूबर ही बनना है, मतलब प्रॉपर यही करना है फुल फ्लेजेड, या फिर और भी कुछ काम कर रहे हो? दीपक भाई, यूट्यूब तो मैं करूँगा ही, क्योंकि इसी के ज़रिए मैं ईरान गया था और मैं इस चीज़ को चाहे कम करूँ या ज़्यादा करूँ, लेकिन मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इसी चीज़ को लेके गया था और इस चीज़ ने मेरा बहुत साथ दिया है। हाँ, जो थोड़ा बहुत भी अमाउंट आया है लेकिन उससे मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। मैं लोगों से कहूँगा आप सपोर्ट करो भाई का चैनल का गोल बटन यहीं आ रहा होगा, तो उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर करो, सपोर्ट करो भाई। बनाओ बढ़िया बढ़िया व्लॉग बनाओ अपने प्यारे प्यारे। और अब एक चीज़ मैं और फ़ाइज़ा दोनों सोच रहे थे, क्योंकि अभी इसको थोड़ा ये हो रहा है कि X1 वीज़ा में, एंट्री वीज़ा में वर्क नहीं कर सकती, इसको वर्क अलाउड नहीं है, कोई भी जॉब नहीं कर सकती है। तो हमने सोचा है कि हम एक पर्शियन रेस्टोरेंट, पर्शियन बेकरी, कैफ़े, इस तरीके का एक लॉन्च करेंगे स्मॉल सिटीज़ में। जिस सिटीज़ में मैं रहता हूँ, मुरादाबाद में, यहाँ पे हम लॉन्च करेंगे अगर ये सक्सेसफुली रन करेगा। क्योंकि पर्शियन फूड ऐसा है जो लोगों ने शायद टेस्ट करा हो लेकिन उस तरीके से ना करा हो, जब ये खुद भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, तो जो भी शेफ़ होगा उसकी ट्रेन करेंगे, चाहे हम शेफ़ ईरान से बुलाएं, लेकिन हम लोगों को एक अलग से टेस्ट देना चाहेंगे। बिल्कुल भाई, अगर गुरुदेव का आशीर्वाद रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो फिर हम उसे आगे बढ़ाएंगे और आप सब भी आओगे उस पर। अरे डेफिनेटली भाई, हम क्यों नहीं आएंगे। और मज़ा आ गया यार आप लोगों से बात करके, बहुत प्यारी जोड़ी है। भगवान करे आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, प्यार बना रहे, दोनों देशों का भी और दोनों लोगों का भी। आप you had fun? Yes. You had fun? Yes, You of course. enjoyed? Actually, the atmosphere that you provided that with us was very much friendly. It's very much friendly, and I didn't feel at all bad at all. Yes. Thank you. Thank you. That's our USP. We make people friendly around us so that, you know, they open up and they're comfortable and they can talk to us, like they can talk their heart out. Yeah, really. I was like, I was like the place and the atmosphere was in the way as if I really thought that okay, all of you like Deepak Bhai, Deepak Bhai, Piyush Bhai, and I know Shubham Bhai are my friends like that. Really, I had this kind of feeling. चलो जी। और भाई एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, शादी में आप सबको आना है। शादी में बिल्कुल आएंगे भाई। हाँ। और दूसरा, ईरान में भी आपको मैं अपनी तरफ से, फ़ाइज़ा की तरफ से इनवाइट करता हूँ। ईरान में आप पहुँचो, सारा स्पॉन्सर मैं करूँगा। अरे नहीं भाई, वो तो हम अपने पैसे से आ जाएंगे, टेंशन मत लो। ना, आओ अपने पैसे, आओ घुमाना फिराना, हर चीज़ दिखाना, और अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो भी करवाएंगे। इतने तो टर्म्स बना रखे। लवली गाइस, मज़ा आ गया। अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो भाई आप ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो दोनों चैनल्स को। एंड हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। किसी को भी हेट मत फैलाओ, किसी की वीडियो पे नेगेटिव कमेंट मत करो, प्यार फैलाओ, प्यार बांटो। That is it. चलो जी, till then bye bye, see you, take care.